ਏਕੰਕਾਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਚ ਹੋਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਹੈ, ਵਿਘਨ ਵਿਨਾਸ਼ਨ ਸੋਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੋਹਰਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਹਿ ਸਭਨ ਸੋ। ਉਚਰਿਓ ਬਹੁਰ ਸ਼ਲੋਕ ਮਨ ਵਿਕਾਰ ਤਿਨ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਏ। ਸੁਣਤ ਬ੍ਰਿੰਦ ਤਹ ਲੋਕ। ਪਰਮ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਸਤਿਗੁਰੂ ਚਵਰ ਛਤਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਾਜ਼ਰਾ ਹਜ਼ੂਰ ਜਹਰ ਜਹੂਰ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਜੁਗੋਂ ਜੁਗ ਅਟਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਸਤਸੰਗੀ ਜਨੋ, ਆਪ ਜੀ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜੋ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪੂਜਨੀਕ ਧੰਨ ਮਾਤਾ ਰਾਜ ਕੌਰ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਆਓ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਲੜੀਵਾਰ ਇਤਿਹਾਸ ਕਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਲੇਰੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਸ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਜੀ। ਰਸਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋ ਪਵਿੱਤਰ। ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਹੋ ਲਵਾਓ ਹਾਜ਼ਰੀ ਸਾਰੇ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੋਹਰਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਹਿ ਸਭਨ ਸੋ। ਉਚਰਿਓ ਬਹੁਰ ਸ਼ਲੋਕ ਮਨ ਵਿਕਾਰ ਤਿਨ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਏ। ਸੁਣਤ ਬ੍ਰਿੰਦ ਤਹ ਲੋਕ। ਕਵੀ ਰਾਜ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅੱਗੇ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾਨੂ ਪੰਡਤ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੰਨਿਆਸੀ ਜੋਗੀ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਨੂ ਪੰਡਤ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਉਹ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਟਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਰਨ ਦਾ ਮਾਸ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਹਿਣ ਦੇ ਇਸ ਮੇਲੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਔਰ ਇਸ ਕੁਰਸ਼ੇਤਰ ਦੀ ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਬਾਲਦੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਵੀ ਬਾਲਿਆ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਹਿਰਨ ਦਾ ਪੱਕਾ ਰਹੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਏ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਡਤ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਾਪ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮਾਸ ਹੈ ਕੀ। ਮਾਸ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹਨੂੰ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪੰਡਤ ਨਾਨੂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਸੰਨਿਆਸੀ ਜੋਗੀ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਸਤੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮਾਸ ਕੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਜਵਾਬ ਆਇਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪ ਹੀ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਪਹਿਲਾ ਮਾਸੋਂ ਨਿੰਮਿਆ ਮਾਸੈ ਅੰਦਰ ਵਾਸ। ਜਿਉ ਪਾਏ ਮਾਸ ਮੁਹ ਮਿਲਿਆ। ਹੱਡ ਚੰਮ ਤਨ ਮਾਸ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪੰਡਤ ਜੀ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮਾਸ ਕੀ ਤੇ ਸੁਣੋ। ਪਹਿਲਾ ਮਾਸੋਂ ਨਿੰਮਿਆ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਜੀਵ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਲਈਏ, ਪਹਿਲੋਂ ਮਾਸ ਤੋਂ ਹੀ ਨਿੰਮਿਆ ਹੈ।
ਔਰ ਨਿੰਮਿਆਂ ਦੇ ਅਰਥ ਆਪ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਦੇ ਉਦਰ ਵਿੱਚ ਗਰਭ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਮਾਸ ਤੋਂ ਨਿੰਮਿਆ ਹੈ, ਪਿਤਾ ਦਾ ਬਿੰਦ ਇੱਕ ਮਾਸ ਹੈ, ਉਸ ਮਾਸ ਤੋਂ ਇਹ ਨਿੰਮਿਆ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਸੈ ਅੰਦਰ ਵਾਸ, ਤੇ ਮਾਤਾ ਦੇ ਉਸ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸ ਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਾਸ ਦੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬੂੰਦ ਦਾ, ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕਣ ਦਾ ਮਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਿਰ ਆਵਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਆਵਾਸ ਵੀ 9-10 ਮਹੀਨੇ ਰਿਹਾ। ਮਾਸ ਨੇ ਮਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਵਾਸਾ ਕੀਤਾ। ਜਿਉ ਪਾਏ ਮਾਸ ਮੋਹ ਮਿਲਿਆ, ਹੱਡ ਚੰਮ ਤਨ ਮਾਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ, ਉਸ ਮਾਸ ਦੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਟੁਕੜੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਜਿੰਦ ਪਈ, ਜਿਉ ਪਾਏ, ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਜਾਨ ਪੈ ਗਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੂੰਹ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਮਾਸ ਦਾ। ਫਿਰ ਹੱਡ ਨੇ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੀ ਚਮੜੀ ਹੈ, ਤਨ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਸ ਹੀ ਤਾਂ ਹੈ, ਮਾਸ ਦੇ ਤੇ ਬਣਿਆ। ਮਾਸੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਮੰਮਾ ਮਾਸ ਗਿਰਾਸ। ਤੇ ਪੰਡਤ ਜੀ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਮਾਸ ਖਾਂਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਸੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ, ਜਿੱਦਣ ਮਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਮਾਤਾ ਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ, ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਾਸ ਹੀ ਖਾਧਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਸੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਮੰਮਾ ਮਾਸ ਗਿਰਾਸ, ਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ, ਮਾਸ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਮਾਸ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਕੁੱਟਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਸ ਹੀ ਨਿਕਲਿਆ। ਉਸ ਮਾਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਦੁੱਧ ਦਾ। ਮਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮਾਸ ਹੀ ਨਾ, ਲਿਕੁਇਡ ਮਾਸ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੱਲਾ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਮਾਸ ਖਾਧਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਹ ਮਾਸੇ ਕਾ ਜੀਭ ਮਾਸੇ ਕੀ, ਮਾਸੇ ਅੰਦਰ ਸਾਸ। ਭਈ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮਾਸ ਖਾਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਮਾਸ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਪਾਪੀ ਨੇ, ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਸ ਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਭ ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਮਾਸ ਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਸ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਹ ਸਵਾਸ ਵੀ ਤੇ ਮਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ। ਤੇ ਮਾਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਨਾ ਖਾਣ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ? ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਂਦੇ ਨੂੰ ਪਾਪੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਏ? ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਤੇ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮਾਸ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਪਾਪੀ ਨੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲੋਂ ਤੇ ਮਾਸ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਵੱਡਾ ਹੁਆ ਵਿਆਹਿਆ, ਘਰ ਲੈ ਆਇਆ ਮਾਸ। ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ, ਵਿਆਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ, ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਆਹ ਲਿਆਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ ਭਾਈ? ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਨਾ ਕਿ ਵਿਆਹ ਕੇ ਵੀ ਮਾਸ ਹੀ ਲਿਆ ਹੈ। ਮਾਸ ਹੀ ਵਿਆਹੁਣ ਗਿਆ, ਮਾਸ ਹੀ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲਿਆਇਆ। ਮਾਸੋ ਹੀ ਮਾਸ ਉਪਜੈ, ਮਾਸੋ ਸਭੋ ਸਾਕ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਸ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ, ਮਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਮਾਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਸ ਖੇਡ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਮਾਸ ਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਆਪ ਹੀ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸਾਕ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਮਾਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਹੁਕਮ ਬੂਝਿਆ, ਤਾਕੂ ਆਵੇ ਰਾਸ। ਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਿਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਬੂਝਿਆ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੂਝਿਆ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੀ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਾਸ ਦੇ ਖਿਲਾਰਾ, ਜੋ ਕੁਝ ਬਣਿਆ ਹੈ ਹੀ ਮਾਸ ਤੋਂ ਬਣਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜੇ, ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਜੇ, ਤਾਕੂ ਆਵੇ ਰਾਸ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨੂੰ ਰਾਸ ਵੀ ਬੈਠਦੀ ਹੈ। ਆਪ ਛੁਟੇ ਨ ਹੈ ਛੁਟੀਐ, ਨਾਨਕ ਬਚਨ ਵਿਨਾਸ਼। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਮਾਸ ਦੀ ਚੱਲ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵਹਿਮਾਂ ਤੋਂ, ਭਰਮਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਛੁੱਟਣਾ ਚਾਹੀਏ ਕਿ ਮਾਸ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
तो नहीं छुट्टिया जा सकता, क्योंकि जिवें जिवें की किसी को समझ आएगी उवें उवें तो किसी ने कही जाना है। हाँ, गुरु का वचन जे कोई कमा लवे, गुरु के वचन को कोई अमली जामा पहना दे, गुरु की सिक्ख्या जीवन में धारण कर लवे, कहते तां इन्हां भरमां तो इन्हां वहमां तो छुटकारा हो सकता है। हुण सतगुरु जी समझाते हैं तो कवि राज अगे कहते हैं कि ये सब तो पहली गल मास है कि सारा हर कुछ बड़े ही मास तो है ही मास। जन्मादक ते अपर जो मासो सभो होए। हुण कवि संतोख सिंह जी अगे लिखते हैं कि धन गुरु नानक साहब जी समझाते हैं पंडित जी, जन्म तो लैके मरण तक जो कुछ है ही मास का, और सब कुछ मास का बनया है। बिना मास नह है कछु होए ना उचरो कोई। सतगुरु कहते मास तो बिना तो कोई कुछ है ही नहीं। तुसे मास का रौला पाया है, पर मास तो बिना तो कुछ है ही नहीं। होए तो उचरो कोई, जे मास तो बिना कुछ है तो पंडित जी फिर दस दो, उच्चारण करो, दसो, समझाओ कि मास तो बिना केड़ी चीज़ है। कह विराग जे उर बिकै सतगुरु के टिक जाए। तो जदों किसी को अगों जवाब कोई नहीं आया, धन गुरु नानक साहब जी फिर कहते हैं भाई हिरदे के अंदर विराग आ जाए, गुरु के शरण में कोई चला जाए, गुरु के बचनों को कमा लवे, गुरु के उपदेशों को। कहते ताको दे उपदेश जब भेदे सरबल खाए। जदों गुरु अपना उपदेश देवे तो गुरु सारा भेद फिर समझा दिंदा। किहड़ा भेद? कहते तन को जाने भिन्न चेतन भिन्न दिखाए। कहते गुरु ये समझा दिंदा है, उन्होंने ये समझ आ जाती है। तन को जाने भिन्न, वो अपने आप को फिर शरीर तो वखरा समझता है, क्योंकि जो मास का रौला पाया शरीर तो है ही मास का। पर जो गुरु तो समझ आ जाए कि मैं मास थोड़ी हाँ, मैं शरीर थोड़ी हाँ, मैं तो इस शरीर रूपी घर दे विच रहन वाला परमात्मा का वो आत्मा हाँ, वंश हाँ। पुन चेतन भिन्न दिखाए। तो फिर अपने अंदर की जी चेतनता है, मेरा गुरु उपदेश दे के उन्होंने शरीर नाल वक्री विखा दिंदा भी शरीर कुछ होर है, तू कुछ होर है, शरीर एक कर है। सत आत्मा जन ही देह अनित सदाए। तू इस मास के शरीर विच इस घर दे विच रहना है, पर है तू सत आत्मा, उस सत परमात्मा की अंश है। तो गुरु ये कहते अंदरों विखा दिंदा है, समझ करा दिंदा है। सत असत संबंध जो कशु न जान कोई। हुण सतगुरु जी कहते हैं ये जिहड़ा सच ते झूठ का संबंध है ना, असल में इन्हूं कोई जान ही नहीं सकता। तो क्यों नहीं जान सकता? क्योंकि सारे पासे झूठ का है। ये समझ नहीं आती कि झूठ कहिए किवें ते सच नूं वेखीए किवें। और गुरु साहब जी तो कहते हैं जो कुछ उपजो सो बिणस है, तो जो बिणसन वाला वो है ही झूठ। फिर सच तो झूठ की परख किवें होगी? इस सच के झूठ को जानिए किवें? सतगुरु कहते हैं सत असत संबंध जो कशु न जाने कोई, कोई भी नहीं जानता। क्यों जी? कहते जैसे सबता तिमर को नेर न कबहू होए। ये सच ते झूठ दो ऐसे पहलू ने, जिवें सूरज चढ़ जाए तो फिर हनेरे का कितने नामो निशान रहिंदा है जी। हनेरा है कित्थे? बस जिथे सूरज की होंद नहीं, सूरज नहीं, हनेरा है ही उत्थे। सूरज एक ज्ञान है, चानण है। जिथे गुरु का ज्ञान नहीं, सचमुच झूठ है ही, उत्थे झूठ की अपनी होंद कोई नहीं। सच आ जाए, सच का पता लग जाए, सच नाल जुड़ जाए तो झूठ तो खत्म हो जाता है। क्योंकि जो सच का सूरज चढ़ जाए हनेरा रहिंदा नहीं, हनेरे का नामो निशान निकल जाता है। हुण गुरु साहब जी कहते हैं बस सच तो झूठ इस तरह, सच की समझ आ जाए
तो फिर सच जाने झूठ का कोई, झूठ की अपनी होंद कोई नहीं। झूठ है ही उदों तक जदों तक सच की समझ नहीं। आपो को न जानहि बिन सतगुर उपदेश। फिर सतगुर जी कहने इस सच झूठ के भेद को अपने आप को समझ भी नहीं सकता। गुरु के उपदेश तो बिना, गुरु के ज्ञान तो बिना समझ आती नहीं, क्योंकि सानू तो सूरज का चानन ही चानन लग रहा, सानू तो चलते फिरते शरीर ही सब कुछ सच दिसते। और धन गुरु ग्रंथ साहिब जी ने कृपा की आसा की वार के आप रोटी पढ़ गए भी इवें दे सूरज, इवें दे चंद्रमा जोड़े ने सैकड़े तो हज़ारां भी चढ़ जाए, क्योंकि जिन्होंने चानन असी समझ बैठे तो चानन है ही नहीं। चानन तो चाहिए ज्ञान का, तो यह ज्ञान का चानन गुरु तो बिना होर किसी ने देना नहीं। वो सतगुरु के पावन वचन ने कि जे 100 चंदा उगवै सूरज चढ़े 1000। हुण हज़ारे सूरज चढ़ जाना, हज़ारे चंद्रमा चढ़ जाने, पर कहते इत्ते चानण हुंदे आ गुर बिन घूर अंधार। ये जिहड़ा ज्ञान का चानण चाहिए ना, ये गुरु तो बिना मिलना ही नहीं, अंदर घूर हनेरे रहना है। ये सच दे झूठ की समझ गुरु तो बिना हुई। और सतगुरु जी ने पावन वचन कई थावां ते पावे कहे, कविराज अगे कहते हैं इस प्रकार कह सबन को दूषण पे जगतेश। हुण सतगुरु धन गुरु नानक साहिब जी इन्ने वचन करके फिर चुप कर गए। भाई तुहाडा कोई होर सवाल है तो दसो, चर्चा करन आयो, सवाल करो जवाब देंगे। पंडित सन्यासी बहुत उत्तर आए ना कोई। हुण जिन्ने उत्ते ब्राह्मण सन, जिन्ने सन्यासी सन, जिन्ने जोगी सन, सारे सामने खड़े ने, पर किसी को कोई सवाल ही नहीं आया कि सतगुरु जी के इस सवाल के, इस उत्तर का कोई सवाल होर की करिए तो इनका उत्तर की दईए। ना कोई सवाल को बोढ़िया तो ना किसी तरह का जवाब आया। पिके परस पार बदन निज सन्मुख होए ना कोई। कहते बस सारे पंडित सन्यासी एक दूजे के मूँह वाल वेखते हैं, सामने कोई नहीं होता। इशारा करते हैं कि अगे होकर कुछ पुछ, तो दूसरा तीसरे में इशारा करता भी तू पुछ लै, मैं की पूछा, क्योंकि कुछ समझ ही नहीं आती, पूछिए की सवाल की करिए। सन्यासी निज कहत पे केतक काल बिताए। कहते सारे पंडित सन्यासी बस एक दूजे के मूँह वाले अखा नाल इशारा करते हैं, बोलते नहीं। कितना समय इस तरह बिल्कुल चुप ही रहे तो एक दूजे को इशारे करते रहे। फिर एक सन्यासी जिहड़ा है वो नानू पंडित के कोल खड़ा है, तो नानू पंडित नूं कहंदा है नानक चंद पंडित बड़ो तैं जीत्यो जग जाए। सन्यासी कहंदा कि नानक चंद कि तू तो दुनिया में रौला पाया सी कि मैं ही अवतार। ये भविष्यत पुराणा विच मैं पढ़िया कि मैं ही अवतार। और जगत में अज तक जिथे जिथे तू गया चर्चा की कि तू हारिया भी, ये कह लिए कि सारे संसार में जितने वाला है। तो पंडित जी अज तू भी चुप होकर पिछे खलो गया कि मूँह के तू भी घूंघड़ियाँ पा लिया, सामने हो कुछ पुछ, कोई सवाल कर। इस फकीर कै सामने चर्चा क्यों न करंत। सन्यासी कहता नानक चंद पंडित जी इस फकीर के सामने होकर तू चर्चा क्यों नहीं खुल के करता, तू तो पिछे पिछे हट रहा, सामने होकर चर्चा कर। बेता अज्ञानम को सबन मैं मत मंत। कहते तू तो बड़ा सियाणा है, तू बड़ा विद्वान है, सारे वेदां दा शास्त्रां दा तू जानण वाला, ते अपनी चर्चा विच सब नूं हराउण वाला अज पिछे पिछे हो गया। चौपे सुन कर नानू पंडित तब ही बोलियो सबन प्रेरियो जब ही। हुण नानू पंडित नूं सवाल तो कोई नहीं आ रहा,
पर जो सन्यासियों ने पिछों होर पंडितों ने ये कह लिया कि एक पंप दिता हल्लाशेरी दी कि सामने वो बड़ा विद्वान है, ये दूजिया का प्रेरिया और फिर हौली हौली अगे होंदा अंदरों समझ है कि जेड़े नानक अवतार बारे मैं कोई जानना हाँ पढ़िया है तो जेड़े आप ही रब ने उन्होंने सामने जाके सवाल की करा तो उन्होंने सवालों का जवाब की दिया है। पर क्योंकि हुण लोगों को एक भरम दे विच पाया सी ने कि मैं ही नानक चाहता सामने होना पिया। फिर आया हौली हौली श्री गुर केर प्रताप बधावा साबत कोई न उतर आवा। कहते पर धन गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी का तेज प्रताप ही इन्ना सी ते गुरु साहब के तेज प्रताप देंदे ते दबाव भी बड़ा सी। और दबाव खास करके इस करके सी कि जानता सी मैं तो झूठा, मैं तो झूठ फैलाया तो इन्हां दे सामने जाके हुण मैं कहां कि उत्तर कोई नहीं होंदा, कोई जवाब तो सवाल कोई नहीं। पर फिर भी वही सवाल दोबारे फिर ने जेड़ा पहलों किया सी वो फिर कर दिता। हे फकीर तै कीन कुकर्मा पूर्व दिवस पुन भागत धर्मा। ये नानू पंडित कहता कि हे फकीर जी तू एक बड़ा वड्डा कुकर्म किया है, पाप ही कर दिता है कि अज के दिन सूरज ग्रहण के इस दिहाड़े तेनू तो असीं शुभ मनने और कहता सारे धर्म इनू शुभ मनते हैं क्योंकि अपने बनाया हुआ ना शुभ दिन। ये शुभ दिन मनते हैं कि किस प्रकार तू हमें बतावें, पर धन गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी दे करदा इस सिद्धांत ही नहीं कि जे गुरु साहब जी कह दें कि ये सूरज ग्रहण वाला दिन बड़ा शुभ दिन है, 365 के विचों एक दिन शुभ है भाई, फिर इनका भावार्थ की निकलेगा, बाकी 364 दिन बड़े माड़े और किते न किते फसे आप भी उत्थे ही है। चलो अज भावें थोड़ी बहुती समझ लग गई, नहीं तो पिंडा थावां ते अज भी आवाज़ दी जाती संग्राम के दिन कि फलाने दिन संग्राम का शुभ दिहाड़ा पवित्र दिहाड़ा है, तो बाकी दे सारे दिहाड़े अपवित्र ने माड़े ने। इनका मतलब कि रब ने जो कुछ बनाया फिर बाकी माड़े बनाया, कि तेनों ज़्यादा समझ लग गई। गुरु ते करदा सिद्धांत है कि भाई इत्थे जो कुछ है वो एक एक पल एक एक दिन एक एक पैर सारे पवित्र है। महादिवस मूर्त भले जिसको नज़र करे, बस वो दिन वो महीना वो वार वो मूर्त पल पवित्र है जिहड़ा तेरा संगत विच बीत जाए, जेड़े दिन जेड़े समय गुरु की तेरे ते निगाह हो जाए। पर यह कह रहा है कि यह दिहाड़ा शुभ बड़ा है, सारे धर्म मनते। किस प्रकार तू हमें बतावें जे सब शास्त्र दोष लगावें। नानू पंडित कहता कि हे फकीर तू सानू इस मास के बारे किवें समझा रहे, किवें दस रहा, वो भी अज के इस शुभ दिहाड़े कि जिन्हों सारे धर्म के शास्त्र जिन्ने ने वो सारे पाप मनते हैं कि अज के दिन तो चूल्हा बालना भी पाप है और मास रिन्हना तो होर ज़्यादा पाप है। ये तो तू पाप कर दिता, अज के दिन ये नहीं सी करना, अज के दिन तो ये कुछ करना चाहिए है। दान स्नान पूज पे काला अमिख रिदत पाप विसाला। कहते अज के दिन तो दान करना चाहिए, तो करना किन्हों चाहिए। तुसीं तो कुछ नहीं लैके झूड़ियाँ लैके भर के जाना है। जिन्होंने कोई दान नहीं करना वो कह रहे हैं कि दान करना चाहिए, कि तुसीं करो तो असीं लईए। और ये कुछ साडे वाले भी तो कुछ करते हैं जी, किसी भी ढंग नाल वहम भरमां दे विच पा के बस तुसीं दान करो तो असीं लई चलीए। पर गुरु घर दे सिद्धांत तो नहीं ना पई। हुण ये कहंदे ने कि दान करो, अज का दिन तो दान करन दा दिन है, इशनान करो। अज का दिन तो पूजा करन दा समय पूजा करनी चाहिए, पर
पर तुसी मांस रिन के मांस बना के अग बाल के बड़ा बड़ा पाप कर दिता है। कैसो तेरो अह सिद्धांता, उत्तर दे नत होए है पाता। बस इको ही हथियार है सारे दे कोल, उन्हां कोल भी तो साडे वाले कोल। पंडित नानू उस समय कहता सी, साडे वाले अज भी कहते हैं, कहते भाई तेरा ये सिद्धांत किवें दा है, सानू इहदे बारे चंगी तरह समझा दस। उत्तर दे ना तो होए है पाता, नहीं तो हुणे तेरा नाश हो जाएगा। आ डंडे फड़ के खड़े ने, हुणे मार मुकाउणगे। सब बिद बेता सतगुरु, बोले बच तत्काल। कविराज कहते हैं कि सारे तरह के ज्ञाता समर्थ गुरु, आप नारायण कला धार, जग मह परवरिओ सतगुरु। धन गुरु नानक देव सच्चे पातशाह ने फिर सोने बचन किए। कहते पंडित जी फिर सुन, द्विज सन्यासी अपर नर, सुने पीर विशाल। कहते जिन्ने ब्राह्मण सन, जिन्ने पंडित सन, सन्यासी जोगी तो होर जिहड़े गृहस्थी लोग बैठे ने, बड़ी भीड़ है, सारे सुन रहे हैं। तो धन गुरु नानक देव सच्चे पातशाह ने फिर कृपा की, वो अगला श्लोक उच्चारण किया। और कल भी बेनती की सी, श्लोक ये 1299 तो 1290, ये पूरा शब्द है, लंबा शब्द है। और सतगुरु जी कृपा करन, गुरु की बाणी तो गुरमत मुताबक जो कुछ गुरमत कहती है, गुरमत के दायरे दे विच रह के इस शब्द के आपां विचार कर सकीए। गुरु साहब जी ने उदों समझाया, अज भी समझाते हैं। महला पहला, मास मास कर मूर्ख झगड़े, ज्ञान ध्यान नहीं जाने। कौन मास कौन साग कहावै, किसमें पाप समाने। हुण धन गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने पहले श्लोक दे विच भी किया कि मास दे अंदरों कढ़िया तो उस वेले मास मूँह विच पाया, मास ही घुटिया तो मास ही मूँह दे विच घुट भरी, दुध की घुट भरी। इत्थे गुरु साहब जी कहते हैं लोग, और गुरु साहब की बाणी जिन्ने भी पढ़ीए, किते ये नहीं कहा कि मांस खाओ, और किते ये भी नहीं कहा कि मांस नहीं खाना। देखो जे दो तरह इकट्ठे बिठा लीए ना, एक मांस खाने वाला होवे, एक ना खाने वाला होवे, और दोवें गुरु की बाणी जानते हो, तो मेरे ख्याल भावें सारी जिंदगी लगते ना खाने वाले ने गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी पढ़ पढ़ के उदाहरण दी जानी है, और खाने वाले ने भी गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी पढ़ पढ़ के उदाहरण दी जानी है। क्योंकि मांस खाना या ना खाना ये तो धर्म का विषय नहीं सी, और ये धर्म का विषय बना के इस भरम के विच सानू फसा दिता है। साडे तो लोग पूछते हैं आके, और जो पुजारी तो पूछोगे, पुजारी बड़ा चलाक है कि मान लो भाई हिम्मत सिंह आके पूछन कि भाई मांस खाना चाहिए, मैनू पता कि भाई हिम्मत सिंह नहीं खाते, मैं कहना नहीं जी पाप होता है। मैंने कोई दूसरा पूछ ले, भाई राम सिंह पूछ ले जी, मैनू पता हो तो खाते हैं, मैंने कह लेना खा देना चाहिए। ये जरा पुजारी है ना, उखरमा करना, मैं उस श्रेणी में ही हाँ। एक तो खुल के बोलते इस करके नहीं, क्योंकि जेडे 10 रुपये होंगे ने कितने भी आने बंद हो जाए। और खिमा करना विचार क्योंकि दूर तक जानी है। एक गुरु साहब ने कृपा की, हुण मास मास कर मूर्ख झगड़े, 2 बारी शब्द वरत्या। एक तो जेडे मास खाते हैं वो कहते खाना चाहिए है, तो दूजे जेडे मास नहीं खाते वो कहते नहीं खाना चाहिए। तो केवल नहीं खाना चाहिए नहीं कहते, कहते खाण वाला पापी है, खाण वाला धर्मी नहीं। और देखो एक बेनती होर करते कि अपने सिख पंथ में धड़े तो है ही नहीं ना दो, और खालसा पंथ ने जी रहत मर्यादा बनाई सी, बड़ी सोच समझ के और गुरबाणी को सामने रख के बनाई सी, भाई कुट्ठा नहीं खाना। उत्थे सीधा भी लिखा जा सकता सी कि गुरु के सिख ने मांस नहीं खाना,
क्योंकि ये धर्म का विषय नहीं। असल में जो पूछना सी कि मांस खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए, ये डॉक्टर को पूछना चाहिए सी कि तेरे शरीर वास्ते ठीक है भी कि नहीं। साढ़े वर्ग तो जो माँ की दाल नहीं खा सकते, उन्होंने मांस कितों खाना पे? क्योंकि माँ की दाल हर वास्ते तो नहीं ठीक, किसी लिए स्वादी किसी की बदी। ये तो धर्म का विषय नहीं से बना दिता। गुरु साहब जी कहते मांस मांस कर मूर्ख झगड़े, खाण वाले कहते खा लेना चाहिए, ना खाने वाले कहते नहीं खाना चाहिए। और इतने कितने भी गल नहीं कि तुसी खा लो, कोई गल नहीं, तुसी ना खाओ जी। ये गुरु साहब जी कहते हैं तो मूर्खों का काम है। सवाल पहली गलत है, सवाल ही गलत है। जो पुछदा वही मूर्ख है। तो जे मेरे वर्गा दसे कि नहीं खाना चाहिए, जाके तो खाना चाहिए है, फिर उस तो बड़ा मूर्ख महामूर्ख ही होएगा ना। कि भाई तू तो माड़ा मोटा जानना, फिर तू तो झूठ ना, तू तो मूर्ख ना बन। धन गुरु नानक देव सच्चे पातशाह ने जी कृपा की कि ये दुध भी एक है तो मां सी ना। भावें बड़े शब्द वरते ने और बड़िया सारिया पंक्तियां गुरु ग्रंथ साहब विचों लैके सवाल किए जाते हैं, पर असीं किहड़ा पढ़ने हैं ना, तो शब्द का पता होंदा। एक पंक्ति लई दी है, वो भी अद्धी, पर उनका अग्गा की है पिछा की है कदे ना पढ़िया ना समझने का यत्न किया। ये सवाल किया जाता है कि फिर ये क्यों लिखा कि जो सब में एक खुदाए कहत हो तो क्यों मुर्गी मारे। बाबा कबीर जी का सलोक है ना। पर जे इस तो पहला सलोक पढ़िया होंदा, दो चार उस तो पहलों होर पढ़े होंदे, तो फिर तेनों आप ही समझ लग जानी से, सवाल करने की लोड़ पैनी नहीं सी। क्योंकि उत्थे मास की तो गल चल ही नहीं रही। बाबा कबीर जी का सवाल तो उत्थे मुल्लां नाल हो रहा है, जवाब मुल्लां नूं दे रहे हैं। इस तो पहला सलोक है, एक करी आधी करी आधी हूँ ते आद, भगतन सेते गोष्ठे जो किन्ने सोलाद। गल तो बंदगी दी सी भी एक घड़ी नहीं अद्धे घड़ी, उदे तो भी अद्धे घड़ी, जिन्ना समा मिले गुणा नाल ते जिन्नी साझ पाई उत्थों कोई नुकसान थोड़ी है, उत्थों तो फायदा है। पर तू फस गया इस मुर्गी दे विच चक्कर दे विच, फस गया मास के चक्कर विच। और मुर्गे च मारना भी तो भगत कबीर जी का उत्थे जिहड़ा सिद्धांत है, ये मुसलमान वीर मुर्गी नूं मारते हैं तो आप जी जानते क्यों मारते हैं, कलमा पढ़ते हैं ना, बड़ी दी जाती है कि खुदा खुश हो जाएगा। इत्थे सिद्धांत तो वो सी कि एक पासे तुसीं कहंदे हो सारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ रब है, ये सारे कहते हैं भी सब ਦੇ ਵਿੱਚ रब है। एक पासे मुर्गी नूं मार दे, बकरे नूं मार दे हो, जां किसी होर जानवर नूं मार दे कि इहदे नाल खुदा खुश हो जाएगा। भी खुदा नूं मार के खुदा खुश किवें हो जाएगा, ये साडी समझ विच नहीं आई गया। ये काम साडे वेले करदे ने, हजूर साहब चलदे ही है ना जी। भी तुसीं बकरा खाना उन्होंने वढ़ के खा जाओ, बना के खा जाओ, पर भरम दे विच पाउंदे ने कि इहदे नाल गुरु साहब खुश होएगा, बड़ी वो भी दिंदे ने, उत्थे जाके भोग भी लवाया जाता है। ये गुरु साहब जी कहते हैं भी सिद्धांत ये गुरमत का तो एक जिहड़ा सिद्धांत ही नहीं सी कि खाना है कि नहीं खाना। ये तो तेनों पता सी या तेरे शरीर नूं पता सी। हुण देखो मांस को खांदा होवे पर उन्हें कदे झूठ ना बोलिया हो, किसी का हक ना खाधा हो, उन्होंने फिर भी आप कहीए कि तो सिख हो ही नहीं सकता मांस खाता है। एक बंदा मांस नहीं खाता, वो बंदे का पूरा कारोबार सब कुछ लुट के खा जाए। उन्हें अमृत भी छकिया हो, आप फिर भी कहे नहीं तो गुरसिख है। ये कोई न्याय की गल थोड़ी है। और गुरु साहब ने सारे वचन इस शब्द के कहे हैं कि जो कुछ खाना है उन्होंने तो कही जाना नहीं खाना, जो कुछ नहीं खाना आप पक्क सब खाए, वो तो खाई जाना। तो खाना की सी तो की नहीं खाना सी। सतगुरु जी ने सारे नूं समझाया कि हक पराया नानका उस सूवर उस गाय। भी जे तू हिंदू है किसी का हक खाना, तू तो गां का मांस ही खा लिया, उसदे नालों वध पाप हो गया। नाले तू कही जाना मैं मांस नहीं खाता। जे तू मुसलमान है तो मुसलमान मनते ने सूर का पाप मीट खाना बड़ा पाप है। तो धन गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने गुरु ग्रंथ साहब ने कृपा की, तू तो सूर का मांस खाने नालों वध करता किसी का हक खा के।
तो इहदे सिख बाहर थोड़ी है। गुरु साहब ने सिख नूं समझाया भई जे ये हक किसी का खाएगा, देखो गुरु पीर ने हामा तां भरनी है जे तू मुर्दार नहीं खाता। तो जे मुर्दे खा के भी कही जाए कि मैं तो मांस खांदा नहीं, मैं तो धर्मी हाँ। और सतगुरु का पावन बचन लंबा है और विचार भी जी आप टिक करनी पावें 2 दिन भी लग जाए। सतगुरु की कृपा करने विचार आप कल अगे ये शब्द ही करांगे। हुई भुलों की खिमा। आओ 1-2 मिनट होर रसना के नाल हाजिरी लवाइए, फिर समाप्ति है। वाहे गुरु वाहे